गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राइट, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। So we are starting the class beta. Yesterday we have done a few problems regarding Dalton's law of partial pressure. We will do some more problems regarding to Dalton's law of partial pressure. Clear है? The question is in front of you. आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, equal weight of CH4 and O2 are mixed in a container. Calculate the total pressure exerted by CH4. ठीक है, लेट्स सी हु डू द प्रॉब्लम। कल हमने फॉर्मूला सीखा था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट? सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर बेटा। Yesterday we have done one problem, same kind of problem in which we have done a question containing equal moles. So the answer is 1/2. The fraction of total pressure is 1/2. Here we have equal weight. So what will be the answer? 1/3. Okay. Anybody else? No one? 1/2. Okay. Okay. Somebody is saying 1/2. Okay. Equal weight. पहले first see what he is asking. Calculate the fraction of total pressure. The fraction of total pressure is partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. So the fraction of total pressure asking is partial pressure upon total pressure, right? ये पूछ रहा है वो, और that is equal to mole fraction, right? और हमें पता है जो mole fraction होता है किसका पूछा हुआ, CH4 का, तो मोल ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ O2. अब इक्वल वेट, लेट्स सपोज वी अज्यूम वेट एज W, तो W अपॉन 16 अपॉन W अपॉन 16 प्लस W अपॉन 32, राइट? W कैंसिल हो जाएगा, राइट? व्हेन वी सॉल्व इट, द मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बच्चों? हु विल टेल द आंसर? व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन? कितना आएगा? कितना आएगा मोल फ्रैक्शन? 2/3. कितना आएगा? 2/3. ठीक, सो द आंसर इज 2/3, नॉट 1/3, नॉट 1/2. सो द करेक्ट आंसर इज 2/3. ओके, हाँ, मैं एक और आसान तरीका बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू वन मोर मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट? मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस भी किया हुआ है व्हेन आई वाज टीचिंग मोल कॉन्सेप्ट. जब मैं मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब इक्वल वेट गिवन हो, राइट, और दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो. मैं रिपीट कर रहा हूं, जब क्या हो? इक्वल वेट गिवन हो और दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो आप हमेशा वेट उसका एज्यूम कर लीजिए जो हैवियर है. जो गैस हैवियर है उसका वेट आप एज्यूम कर लीजिए. इक्वल वेट है तो W हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं,
तो यहाँ पे एक का वेट 16 है, एक का वेट 32 है, सो दे आर मल्टीपल, सो एज्यूम W एज 32. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट, ये बहुत जल्दी हो जाएगा. तो 32 अपॉन 16 अपॉन 32 अपॉन 16 प्लस 32 अपॉन 32. Now immediately we'll get the answer 2/3. No need to take an LCM and solve it. तुरंत अपने आप ही हो जाएगा. Got it, student? Clear है ये सभी को, right? It is clear to all of you, right? So this is the solution in front of you. If you able to see it, I have done by both the method. Right? चलिए हाँ, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता हूँ. That was I have not written over here. Let me just tell the answer. Calculate the fraction of total pressure. Calculate the fraction of total pressure of helium containing equal weight of helium, methane and SO2. देखते हैं who will do the first. Who will do first? Calculate the fraction of total pressure of helium containing equal weight of helium, methane and SO2. So फटाफट बेटा, हाँ, very quickly you should answer it. Please let me know the answer, beta. Tell me the answer, beta. 0.25. Okay, that is 1/4. According somebody has tell me the answer, that is it is 1/4. Anybody else? Muskan has also told 1/4. Okay. Okay, the two students have given the answer. Let's see. The fraction of total pressure means he is asking the mole fraction of helium. Molecular weight of helium is 4, methane is 16, and it is of 64. Right? So equal weight, I assume it as in 64. So 64 upon 4. 64 upon 4 plus 64 upon 4. Sorry, 64 upon 64. Right? When you solve it, you will get the answer. So what is the correct answer, student? 1/4. Right? Have you understood, students? All the students have understand how we have done the problem? Okay. Assume कुछ भी कर सकते हो आप. You can assume it anything. आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. W एज्यूम करने से तो बेटर है हम 64 एज्यूम कर लें, सॉल्व करने में आसानी रहेगी. क्लियर है रुद्र? ठीक है. देखिए हाँ, कल भी प्लीज, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास अगर आप पहले छोड़ के जाएंगे, हाँ, मैनी स्टूडेंट, राइट, मैनी स्टूडेंट लीव द क्लास अर्लियर. वो पहले क्लास छोड़ के चले जाते हैं और तब उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. मुझे काफी बच्चों का कॉल, कल मैसेज आया कि सर जो आपने नोट्स भेजे हुए हैं वो आपने लेक्चर में उसको इंक्लूड नहीं किया था, या आपने लेक्चर में ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया था. बट मैंने कराया था. आई फाइंड मैनी स्टूडेंट, जब मैंने लास्ट में क्लास बंद करी थी, मैं जब क्लास एंड कर रहा था, तो आई फाइंड ओनली 58 स्टूडेंट आर अटेंडिंग इन द क्लास. ठीक है, ओनली 58 स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, और आई थिंक सो 55. सो दिस मीन्स आउट ऑफ 98, more than 40 student have left the class earlier, 10 or 15 minutes earlier. अगर आप ऐसा करेंगे तो I will not be responsible for that, and I will not repeat in the class also. So please mind it. ठीक है. For those students who leave the class earlier, please go through the video, the recording of this online class. It is available on my channel. ठीक है. I will not repeat that concept in the class again and again. So please mind it. All the students who left the class earlier. ठीक है. You should also follow the decorum of the class also. Na? Teacher leaves the class first, not the student. But I find many students left the class first.
before leaving the teacher. So I am repeating this concept, right? He has asked me, in the question he has asked the fraction of total pressure of helium, the fraction of total pressure of helium, that is partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. So fraction of total, right? So fraction of total means partial pressure of helium upon total pressure is equal to mole fraction. यही तो पूछा हुआ है, fraction of total pressure, partial pressure of helium upon PT, ठीक है, upon PT is equal to mole fraction. यही पूछा हुआ है, fraction of total pressure पूछा हुआ है, that is equal to mole fraction. अब mole fraction क्या होता है? moles of helium upon total moles. अब यहाँ पे इक्वल वेट गिवन था, तो मैंने क्या कहा था, अगर सब के सब दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 4, दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर क्या होगा, सेम सबके सब क्या होंगे, अगर मल्टीपल होंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो गैस सबसे हैवियर है उसका वेट एज्यूम कर लेना है. क्या करना है, उसका वेट एज्यूम करना है. तो आई हैव एज्यूम इक्वल वेट एज एन 64. मैंने W जो एज्यूम किया है, हाँ जी, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है यार, सॉल्व करने का तरीका है, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो. इफ यू वांट टू डू इट लाइक दिस, यू कैन डू इट लाइक दिस. आई हैव नो इश्यूज, राइट, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम. आप टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे, कोई शॉर्टकट नहीं है ये, ठीक है. सो W अपॉन कितना है, NT. सो दिस मीन्स कितना होगा, 64 अपॉन 16, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 64 अपॉन 16 plus 64 upon 16, sorry, 64 upon 4, that is 64 upon 16 plus 64 upon 64, right? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 मिलेगा, ये 16 plus 4 plus 1, तो राइट आंसर है 16/21, not 1/4. So the correct answer is 16/21 is the fraction of total pressure of helium, राइट. मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं इस बार आपने दोनों बार गलत आंसर बताया, देखते हैं इस बार कौन बताता है राइट आंसर. कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. क्या है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इफ इट कंटेन्स मीथेन, O2 एंड SO2. देखते हैं कौन बताता है इस बार राइट आंसर. प्लीज हाँ, डोंट टेल द रॉन्ग आंसर. हाँ, टेक योर टाइम एंड गेट द करेक्ट आंसर. देखते कौन बताता है. नहीं, वीडियो वाज ऑन, नॉट पॉज्ड. अबेनूर, चेक योर नेट बेटा. 2/7. somebody has told 2/7, another one has told 2/7. so अभी क्या है, फिर से फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ O2, दिस मींस ही इज आस्किंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. इसका वेट 16, इसका वेट 32, इसका 64, सो दे आर ऑल मल्टीपल of 16. so I assume at इसका वेट कितना, W क्या assume कर लें, 64. तो 64 upon 32, 64 upon 32 plus 32 upon 32 plus 64 upon 64, राइट. तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, राइट. तो द करेक्ट आंसर इज, सॉरी ये 64 था ना, आई हैव एज्यूम 32, राइट. सो ये 2 हो गया. 1 minute स्टूडेंट, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. 64 upon 32, 64 upon 16 plus 64 upon 32 plus 64 upon 64, right. So that is 2 or 4 plus 2 plus 1. So correct answer is 2/7. Correct answer is 2/7. So many student have given the right answer. ठीक है. सो जिस स्टूडेंट का 2/7 आया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है. ठीक है, आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर स्टूडेंट. नाउ यू गॉट, अभी आपको समझ में आ गया होगा हाउ आई हैव डन द प्रॉब्लम एंड हाउ यू हैव सॉल्व इट, राइट. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. आई एम गिविंग यू वन मोर प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट. This was the problem in front of you. The air containing 78% of nitrogen and 21% oxygen
and 1% other gases. Calculate the partial pressure of N2 and O2. Calculate the partial pressure of N2 and O2. क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है एयर कंटेनिंग 78%, N2 21%, O2 1%, O3 1% other gases, sorry. Calculate the partial pressure of N2 and O2. ठीक है, ए चलिए यहाँ मैं करके बताता हूँ आपको। मुझे बताओ एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर? एयर का प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर में? 1 atm। कितना होता है? 1 atm, राइट। अब आप देखिए क्या है, 78% अगर नाइट्रोजन है, 78% अगर नाइट्रोजन है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा नाइट्रोजन का? अगर 78% नाइट्रोजन है तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर? 0.78। एक्सीलेंट मोहित, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए क्या है, टोटल मोल्स कितने 100 है, उसमें से 78 किसका है? 78 क्या है? नाइट्रोजन का है। तो 78 के मोल कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन 0.78 हो गया। और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन? 0.21। कितना हो गया? 0.21। सो टेल मी व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2? So what is the partial pressure of N2? What is the partial pressure of N2? Mole, हाँ, point mole fraction into total pressure. Total pressure is 1 atm. तो कितना होगा? 0.78 जो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर वो N2 का होगा। और ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2.21%, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल, दैट इज 78 अपॉन 100, तो 0.78। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज 0.21, राइट। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो कितना हो गया? 0.78 atm। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया? 0.21 इंटू 1, दैट इज 0.21%। तो जो गैस जितना ज्यादा होगा किसी भी कंटेनर में या एटमॉस्फेयर में, उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिसके जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन का। दिस मीन्स नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में। तो जितना भी 1 atm हमारे एटमॉस्फेयर में लग रहा है, प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, ठीक है, उसमें से 0.78 atm इज ओनली ड्यू टू व्हाट स्टूडेंट? विच इज ओनली ड्यू टू नाइट्रोजन, विच इज ओनली ड्यू टू नाइट्रोजन। एंड 0.21 atm इज ड्यू टू, एंड 0.21 atm इज ड्यू टू ऑक्सीजन। क्लियर है? सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी N2 हैज हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन बताता है ये क्वेश्चन, राइट। खुद सोच के बताइएगा। एक वेसल है, ठीक है, वेसल कंटेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, राइट, एंड 32 ग्राम ऑफ O2, राइट, एंड 32 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ या ऐसे लिख दे 64 ग्राम ऑफ CH4, 64 ग्राम ऑफ CH4। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें कि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर किसका होगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 64 ग्राम ऑफ क्या है? मीथेन है। तो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर किसका होगा? एक्सीलेंट। बोथ का सेम नहीं होगा, CH4 का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मोल्स कितने होंगे? 2, इसके मोल्स कितने हैं? 1, और इसके मोल्स कितने हैं? 4। तो जिसके ज्यादा, जितने ज्यादा मोल्स उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज CH4। तो किसी भी रूम में जिस गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है, राइट? प्लीज हाँ, अपना वीडियो प्लीज अपना ऑफ रखा करिए बेटा। ठीक है, प्लीज कीप योर वीडियो ऑफ सो दैट माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई एम रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑफ योर वीडियो बेटा, टर्न ऑफ योर वीडियो। ठीक है, राइट? It is visible to all of you. It is visible to all of you and my voice is also clear, right? तो किसी के भी नेट में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज चेक ऑन योर साइड बेटा। ठीक है, ओके। So this is about Dalton's law of partial pressure, right? Now we are starting the another concept that is known as Graham's law of diffusion. That is Graham's law of diffusion, right? That is Graham's law of diffusion. Student पहले समझेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे, right? ठीक है, देखिए क्या है diffusion. You heard it from since 9th class. Can anybody tell me what is the definition of diffusion or what is diffusion? Anyone? The topic is Graham's law of diffusion और effusion है ना, यहाँ पे और effusion लिख रहा हूं मैं, और effusion। तो Graham's law of diffusion और effusion, anybody? What is diffusion? Intermixing of a gas. Very good. Moving from a higher concentration to lower concentration. Very good. ठीक है, so you know what is क्या Graham's law या सॉरी what is diffusion? तो diffusion क्या है? Diffusion is a spontaneous process. Very good. So diffusion क्या है? Spontaneous process है। Spontaneous means जो अपने आप होता हो, ठीक है ना? तो diffusion is a spontaneous process of spreading, फैलना and intermixing of a gases. कब तक इंटरमिक्सिंग होती रहेगी बच्चों? टेल मी, कब तक इंटरमिक्सिंग होती रहेगी? स्प्रेडिंग और इंटरमिक्सिंग कब तक होती रहेगी? until we get there is some proper word of it, until we get homogeneous mixture. कब तक? तब तक जब तक कि homogeneous mixture ना पड़ा हो। आपने क्लास 11th 9th क्लास में देखा होगा, नहीं प्लीज हाँ, इट इज नॉट ड्यू टू द प्रेशर। प्लीज याद रखेंगे, डिफ्यूजन इज नॉट ड्यू टू द प्रेशर, इट इज ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, नॉट ड्यू टू द प्रेशर। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एक आपने बीकर लिया, उसमें वाटर लिया हुआ और एक ड्रॉप आपने इंक उसमें डाल दी, तो इंक क्या करेगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? इंक क्या करेगी? इंक का क्या होगा? इंक यूनिफॉर्मली क्या करेगी? स्प्रेड हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद जो कलर होगा पूरे वाटर का, वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। वी गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या मिल जाएगा हमें? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है ना? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग ऑफ अ गैसेस टू गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? सो द डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू एबल टू रीड इट। क्या है बच्चों? राइट, the process of spontaneous spreading and intermixing of a gases to form a homogeneous mixture irrespective of force of gravity, clear? Now have you heard about effusion? क्या आपने effusion के बारे में सुना है? What is effusion? Anybody can tell me what is effusion? Accumulation, okay. Anyone can define it as an English word, effusion? हाँ, मुस्कान has given the correct answer, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, गैस का लीक होना, ठीक है। जब गैस क्या करता है, एक एस्केप ऑफ गैस फ्रॉम अ टाइनी होल, जब किसी एक टाइनी होल से, एक छोटे होल से गैस लीक करती है या एस्केप करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन। क्या कहते हैं? इफ्यूजन। तो लीकिंग ऑफ अ गैस फ्रॉम अ टाइनी होल या एस्केप ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टाइनी होल या पिन होल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इज नोन एज इफ्यूजन। क्या होता है? इफ्यूजन। तो अगर बैलून है, अगर बैलून से क्या हो रहा है, देयर इज अ टाइनी होल, ठीक है ना, तो उससे अगर गैस निकल रही होती है, जैसे आपने गुब्बारा लिया हुआ है और उसमें पहले से एक पंचर है, पहले से छेद है, उसमें होल है, टाइनी होल है, और इफ तक आपने उसमें हवा भर दी
और गैस उससे लीक कर रही है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे हम क्या, इफ्यूजन। क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, राइट। जैसे जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर बैलून फट जाए, ठीक है ना, और गैस बाहर निकल जाए, राइट, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। क्योंकि जब बैलून फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया है जिससे गैस बाहर निकलेगी वो बड़ी हो जाएगी। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है और गैस स्प्रेड करती है तो होता है डिफ्यूजन। लेकिन जब क्या हो, साइकिल पंचर हो जाए, जब आपकी साइकिल पंचर हो जाए, तब उससे जो गैस लीक करेगी, गैस बाहर निकलेगी, उसको क्या कहेंगे, इफ्यूजन। क्या कहेंगे, इफ्यूजन, ठीक है, राइट। So the definition is in front of you. The escape of a gas molecule through a tiny hole, such as a pinhole in a balloon. Pinhole in a balloon, right? तो अगर आपका, right, ठीक है, अगर सिलेंडर से, ठीक है, सिलेंडर का जो पाइप है, आपके जो एलपीजी सिलेंडर है उसका जो पाइप है, उसमें अगर होल हो गया हो, क्या हो गया हो, अगर उसमें होल हो गया हो, ठीक है ना, और उससे गैस बाहर निकल रही है, तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे, अगर जो गैस की, जो एलपीजी गैस की जो पाइप है जो आपके सिलेंडर से वहां तक जा रही है, गैस स्टोव तक जा रही है, उसमें अगर होल हो गया हो, तो उससे अगर गैस लीक हो रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। लेकिन अगर वही पाइप, लेकिन अगर वही पाइप में काफी बड़ा होल हो जाए, या काफी बड़ा क्या हो गया, स्टिच वो आ जाए, क्रैक आ जाए, ठीक है, और तब गैस बाहर निकल रही होगी, तब क्या कहेंगे उसको, तब क्या कहेंगे हम, डिफ्यूजन कहेंगे। तब क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो पहचानने का तरीका यही है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। लेकिन अगर पिन होल है, टाइनी होल है, तो उससे अगर गैस बाहर निकल रही तो बोलेंगे डिफ्यूजन, राइट। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में इंसेंस स्टिक, राइट, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इंसेंस स्टिक को जब जलाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसकी जो स्मेल होती है रूम में स्प्रेड होकर हो जाती है। तो मुझे बताओ वो प्रोसेस क्या था, इफ्यूजन की डिफ्यूजन है वो प्रोसेस क्या है, इफ्यूजन है कि डिफ्यूजन है, वो क्या है, डिफ्यूजन है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया, आपने अपने अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया और पूरे रूम में फैल गया, वो उसकी स्मेल थोड़ी देर बाद रूम में फैल गया, तो वो क्या है, डिफ्यूजन है। वो क्या है, डिफ्यूजन। सो इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लार्ज तो डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू द रैंडम मोशन, ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम कह दें ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जो इफ्यूजन होता है, इफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, लव ने पूछा था तो मैं भी आंसर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, दैट विल क्लियर ऑल योर डाउट, ठीक है, इफ यू एबल टू read it, right. So the diffusion takes place in due to the random motion of a gas molecule or due to the concentration difference, but क्या है, इफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। जब साइकिल पंचर हो जाती है तो क्या होता है, साइकिल के अंदर जो हवा होती है या बैलून के अंदर जो हवा है वो हाई प्रेशर में, और बाहर क्या है, लो प्रेशर है। तो गैस क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप ट्रेवल करती है या एस्केप करती है, राइट। अब मुझे बताओ, डिफ्यूजन क्या यूनी डायरेक्शनल होगा, क्या डिफ्यूजन यूनी डायरेक्शनल होगा कि मल्टी डायरेक्शनल होगा, क्या डिफ्यूजन यूनी डायरेक्शनल होता है कि मल्टी डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा। और इफ्यूजन क्या होगा बच्चों, यूनी डायरेक्शनल की मल्टी डायरेक्शनल, वो क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। तो सेकंड पॉइंट यही है, डिफ्यूजन क्या होगा, चारों तरफ होता है, एवरी डायरेक्शन में होता है, बट जो इफ्यूजन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होता है। वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। आपने कभी भी जब पंचर लगवाने गए होंगे तो जो साइकिल जो पंचर लगाते हैं भैया, उसमें वो जब पानी में डिप करते हैं, जब वो ट्यूब को डिप करते हैं तो एक ही डायरेक्शन से हवा निकल रही होती है, राइट। अब मुझे बताओ, जब आपने इस रूम पे, अपने रूम पे परफ्यूम स्प्रे किया था, तो वहां पे जो प्रेशर था, क्या रूम में प्रेशर डिफरेंस था कि नहीं था स्प्रेडिंग की वजह से,
वहां पे स्प्रेडिंग हुई थी क्या प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ था? नहीं, प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो डिफ्यूजन में प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। डिफ्यूजन में प्रेशर कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, कंटिन्यूस चेंज रहता है। जैसे जैसे गैस बाहर निकलती जाएगी, प्रेशर सिस्टम के अंदर या बैलून के अंदर क्या होता जाता है? धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सो द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट और प्रेशर कीप ऑन क्या है? चेंजिंग, राइट? ठीक है, राइट। और लास्ट पॉइंट ये है जो मैंने अभी बताया था, टेक्स प्लेस at an open cross sectional area or takes place from the pinhole, right? तो आई होप बेटा यू गॉट ऑल द पॉइंट। जो आपके कंफ्यूजन था व्हाट इज डिफ्यूजन व्हाट इज इफ्यूजन, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, टेल मी यस या नो। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वांट टू राइट इट और यू हैव रिटन इट और यू वांट टू राइट इट आफ्टरवर्ड? टेल मी, टेल मी। राइट, चलिए, हाँ, आफ्टरवर्ड। चलिए, मैं अब फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ। ठीक है, एक क्लास में क्या है? अच्छा, हाँ, ठीक है। एक एक क्लास में या क्या है, आप कोई रेस करवा रहे हैं, कोई रेस ऑर्गेनाइज कराई हुई आपने, ठीक है ना? 100 मीटर की रेस है। एक क्या है, पतला सा बच्चा है, ठीक है ना, और एक बहुत मोटा बच्चा है। तो आप मुझे बताओ कौन रेस जीतेगा, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं। तो पतला वाला क्या करेगा? यूजुअली क्या करेगा? जीत जाएगा रेस। जो थोड़ा मोटा होगा, हैवी होगा, बल्कि होगा, वो रेस नहीं जीतेगा, ठीक है ना, या यूजुअली हार जाएगा। जनरल परसेप्शन है ये, राइट? ठीक है, ये जनरली ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर एक के पास हैवियर गैस है और एक आपके पास लाइटर गैस है, तो कौन जल्दी ट्रेवल करेगा? विच विल ट्रेवल फास्टर, लाइटर गैस या हैवियर गैस? लाइटर गैस। क्या है? लाइटर गैस। तो क्या है, ग्रैम्स ने क्या करा? ग्रैम्स ने इसको स्टडी किया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, राइट? तो किसका रेट, रेट आप जानते हैं, है ना, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, लाइटर गैस का या हैवियर गैस का? तो उन्होंने फाइंड किया कि जो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो जल्दी डिफ्यूज करता है एज कंपेयर टू हैवियर गैस जिसका मोलर मास क्या होता है? ज्यादा होता है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बोथ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इट्स रेट ऑफ इफ्यूजन। प्लीज याद रखेंगे बेटा, ये जो लॉ है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इफ्यूजन के लिए भी, डिफ्यूजन के लिए भी। तो बोथ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इट्स रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड अपॉन इट्स मोलर मास। किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास में। लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैस, ठीक है ना, राइट? अब तो मुझे बताओ विच इज सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट गैस? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? अरे हीलियम नहीं होता यार, हाइड्रोजन होता है बेटा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? हाइड्रोजन का मैक्सिमम की मिनिमम हाईएस्ट होगा। क्या होगा? हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, राइट? अब ग्रैम्स ने क्या करा? ग्रैम्स ने, ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे भी बेटा, हाँ ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज, ठीक है, बट डोंट गो इनटू इट। बाद में हम इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम और टॉपिक पढ़ेंगे गैस स्टेट में, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बाद में हम पढ़ेंगे, प्लीज डोंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे, सो डोंट गो इनटू इट, जस्ट आप सुन लीजिएगा। बाद में क्यों, कैसा, क्या है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा देखा गया है या कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, या हम ऐसे कहें जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? टेम्परेचर होती है। तो अगर टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है ना, किन्हीं दो गैसेस का, ठीक है, अगर कोई दो गैसेस हैं और टेम्परेचर आपने सेम रखा है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है। तो अगर मैं गैस वन लू तो m1 और v1 कर दूं, और ये हो जाएगा हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। सो यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया। तो अगर आप देखें v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट, ये क्या हो गया? m2 अपॉन क्या हो गया? m1 हो गया। m2 अपॉन क्या हो गया? m1 हो गया। सो v1 अपॉन जो v2 है वो क्या हो गया? अंडर रूट m2 अपॉन m1। और v1 क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस रेट, वेलोसिटी मींस क्या? रेट, ठीक है ना, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस मीन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर आप देखें
तो V1 अपॉन जो V2 आ रहा है वो M2 अपॉन M1 आ रहा है। तो यहां से कह सकते हैं हम जो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलर मास ऑफ अ गैस। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ अ गैस। तो जिसका गैस जितना स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, याद रखेंगे क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो अगर मैं यहाँ R1 लिखता हूँ तो यहाँ M1 लिखूंगा, ऐसे R2 लिखूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट M2 लिखूंगा। जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यही मिल जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना, M2 अपॉन M1। तो उन्होंने क्या करा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर भी कांस्टेंट रखा। तो जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसा देखा गया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, मोलर मास होता है। जब दोनों गैसेस को डिवाइड किया तो ये रिलेशन निकाल दिया उन्होंने, राइट। और मुझे बता सकते हो आप कि वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था बच्चों, एनीबॉडी, वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला वेपर डेंसिटी, m/2 मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको मैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जो हो जाएगा उसी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो, जब 2 और 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, R की जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के जगह मैं क्या पुट कर दूं, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी किसकी, सेकंड की, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी किसकी, 1 की। 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस मीन्स ये फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या, वेपर डेंसिटी, दैट इज d2 अपॉन d1 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। सो ग्राम्स लॉ क्या कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होगा, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट क्या होगा, वेपर डेंसिटी के होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास और स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इफ यू एबल टू रीड इट, according to this law at constant temperature and pressure rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to its square root of its molar mass or vapor density, inversely proportional to square root of its molar mass or vapor density. So rate of diffusion is equal to inversely proportional to square root of m, और वेपर डेंसिटी क्या होता है, m/2 होता है। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वेपर डेंसिटी क्या हो गया, सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ d, ठीक है। सो अगर दो गैसेस के लिए लिखोगे तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, M2 अपॉन M1 और स्क्वायर रूट के अंदर, और R1 अपॉन R2 हो जाएगा D2 अपॉन D1 स्क्वायर रूट के अंदर, राइट, ठीक है, राइट। और ये D2 और D1 क्या है, वेपर डेंसिटी है गैस 2 और गैस 1 की, और M2 और M1 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 और गैस 1, राइट। मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं है कि उन्होंने कैसे डिराइव किया, वो उसकी जरूरत नहीं, बट मैंने आपको बता दिया उन्होंने क्या करा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। वहां से उन्होंने रिलेशन निकाल दिया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, मोलर मास, या स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, वेपर डेंसिटी, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, यू गॉट इट, राइट, क्लियर है बेटा सभी को, राइट। लव मलिक आपको क्लियर हुआ अभी, लव मलिक, चलिए हाँ, ठीक है। ठीक है बेटा, इस लॉ में कुछ भी नहीं है, समझने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है। मैंने क्या बोला था, जो गैस हाइयर हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, बट जो गैस लाइटर होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा, बट रिलेशन निकाला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्यों निकाला, क्योंकि जो हाफ mv स्क्वायर जो होगा, ठीक है, ये पहले गैस का, और हाफ mv स्क्वायर दूसरे गैस का, ठीक है। तो यहां से जब v1 अपॉन जो v2 लिखोगे तो ये क्या होगा, v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, m2 अपॉन क्या हो गया, m1। तो जो स्क्वायर रूट हटेगा प्रोपोर्शनल, ये स्क्वायर हटाओगे तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, m2 अपॉन m1 आ जाएगा। तो यही तो रिलेशन निकाला हमने, r1 अपॉन r2 इक्वल टू m2 अपॉन m1, यही रिलेशन, राइट। सो नाउ अब रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला तरीका है रेट ऑफ डिफ्यूजन को की कितना वॉल्यूम गैस का डिफ्यूज हो रहा है, राइट। देखिए क्या है बेटा, हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, गैस और दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। देखिए क्या है, मुझे बताओ, अगर ये कार है, कार यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी, ये कार है, कार यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी, क्या इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। बट यहाँ पे अब देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने गैस ले लिया, ठीक है ना, अब गैस यहाँ पे पहुंची, क्या इसका वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्या ये निकालना पॉसिबल है, नो। क्यों पॉसिबल नहीं है, एनीबॉडी, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि जो गैस है वो कार की तरह ट्रेवल नहीं कर रही, कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इट इज क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, नहीं कुछ और नहीं है। रीजन क्या है, कार क्या है, एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, तो आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लिया। बट जो यहाँ पे जो गैस है वो ऑल डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ सीधे जा रही है ना, ऐसा नहीं है। ये ऐसा तभी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में जा रही हो, जब आप क्या करें, एक पाइप के थ्रू उसको भेज दें, क्या करें, एक गैस को पाइप के थ्रू भेजें, तब आप क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन आपने कांस्टेंट कर दी। लेकिन जब ये पाइप के थ्रू नहीं जा रहा है तो वो क्या करेगा, मल्टी डायरेक्शन में जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो अगर आप किसी पाइप के थ्रू भेज पा रहे हो तब तो आप डी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पाइप के थ्रू नहीं जा रहा तो डी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, एक मुश्किल काम है। तो इसीलिए क्या होगा, हाँ, तो इफ्यूजन का डी कैलकुलेट करना आसान है, बट डिफ्यूजन का डी कैलकुलेट करना आसान नहीं है। इसीलिए ग्रैम्स ने क्या करा, इसको रेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, या तो वॉल्यूम के टर्म्स में या किसके, मोल्स के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में या मोल्स के टर्म्स में, कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे पहुंच गई। तो वॉल्यूम निकालना आसान है या मोल्स निकालना आसान है एज कंपेयर टू क्या, डिस्टेंस निकालना। तो उन्होंने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी डिफ्यूज करी पर यूनिट टाइम वो निकाल लिया, या फिर कितने मोल्स डिफ्यूज करे वो निकाल लिया, राइट, ठीक है। तो ये दोनों के हेल्प से उन्होंने क्या करा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन किया, कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज कर रहा है या कितना नंबर ऑफ मोल्स गैस के डिफ्यूज कर रहा है, राइट। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, फिर यहीं पे वही दिखा, पहले किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, ठीक है, राइट। तो रेट क्या है, v, यहाँ पे याद रखेंगे v वेलोसिटी नहीं है, v इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो v1 अपॉन t1 अपॉन v2 अपॉन t2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 अपॉन m1। अगर दोनों का टाइम सेम है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा m2 अपॉन m1 स्क्वायर रूट, ठीक है। याद रखें, फिर से बोल रहा हूँ, v इज नॉट अ वेलोसिटी, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। सेकंड मैंने फिर से बोला था कि अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल्स होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मोल्स के टर्म्स में क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर अ डिफ्यूजन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू n अपॉन टी होगा, तो n1 अपॉन t1 अपॉन n2 अपॉन t2 m2 अपॉन m1। याद रखेंगे सभी में प्रेशर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। या फिर अभी मैंने बताया था क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके, उसको किसी डायरेक्शन में भेज सकें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान होगा, ठीक है, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो d1 अपॉन t1 अपॉन d2 अपॉन t2 क्या होगा, m2 अपॉन m1। ये देखिए d1 अपॉन t1 क्या था, वेलोसिटी, जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि वो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करके। तो v1 अपॉन v2, यहाँ पे v1 क्या है, वेलोसिटी, दैट इज d1 अपॉन t1
और ये d2 अपॉन क्या है, t2 है। अगर मुझे बताओ प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, अगर प्रेशर वेरिएबल होगा, तो मुझे बताओ अगर प्रेशर वेरिएबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? देखते कौन बताता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेशर वेरिएबल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा? ठीक है, चलिए यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, राइट। ये क्या है, एक रूम है, ठीक है ना, ये रूम के हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने गैस ले रखा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, हाफ एटीएम है। बाहर इधर क्या प्रेशर हाफ एटीएम है, और एक बार और ऐसी यहाँ पे है, और यहाँ प्रेशर 0 एटीएम है। कितना है, 0 एटीएम है, और इधर का प्रेशर 2 एटीएम है, दो बार। तो मुझे बताओ अगर मैं ये दीवार हटाता हूँ या यहाँ पंचर करता हूँ तो कौन सी गैस जल्दी ट्रेवल करेगी, किस केस में? ये बी है और ये ए केस है, तो कौन से केस में, बी के केस में कि ए के केस में? बी के केस में। अब ए के केस में तो ना होगा, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी तो बताया था मैंने इफ्यूजन के केस में कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है इफ्यूजन, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, गैस जल्दी ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा, तो रेट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो याद रखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट तो होता ही है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय रूट एम हो जाएगा, पी बाय रूट एम हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P1, तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is P1? Pressure of gas 1, P2 is pressure of gas 2, M2 molecular mass of gas 2, M1 molecular mass of gas 1, ठीक है। और अगर मुझे बताओ प्रेशर, अगर यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, वेसल का कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, चलिए मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है, देखते हैं इस बार कौन बताता है, ठीक है, राइट। पहला केस ये था, ठीक है, कि एक रूम था या 2 एटीएम प्रेशर था, इधर 1 एटीएम या हाफ एटीएम प्रेशर था। एक बार एक रूम ऐसा था, इधर 2 एटीएम प्रेशर था, इधर 0 एटीएम प्रेशर है, इधर गैस है, ये ए था केस और ये बी था केस। तो किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, केस ए में कि केस बी में? बी में। किसमें ज्यादा होगा, बी में। जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी तेज से गैस जाएगी, ठीक है ना। कभी देखा होगा आपने उसमें क्या कहते हैं ये, ठीक है, ठीक है, जैसे जब आपने देखा होगा गाड़ी जब चलती है या रोड पे देखा होगा तो टायर जब चलते हैं तो टायर धीरे धीरे हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से क्या होता है, बहुत बार ब्लास्ट हो जाता है। अगर आपने देखा होगा बहुत तेज से आवाज होती है, बस्ट हो जाता है टायर, ट्रक को रखा तो बहुत तेज आवाज होती है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि बम फट गया है कुछ, ठीक है ना, राइट। तो क्या होता है वहां पे अंदर टायर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, बाहर प्रेशर बहुत कम होता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, ब्लास्ट उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा, गैस उतनी ज्यादा जल्दी क्या करेगी, एक्सपेंड करती है, राइट, ठीक है, या डिस्पर्स करती है, स्प्रेड आउट करती है। अब यही मैं केस देखिए दूसरी बार पूछ रहा हूँ, देखता हूँ इस बार कौन बताता है, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे लेट्स सपोज क्या है, सेम गैस है, ठीक है, एक गैस क्या है 3 मोल गैस है, और एक क्या है यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस है, क्या है 1 मोल गैस है, राइट। बाहर का प्रेशर दोनों का सेम है, ठीक है ना, इधर का प्रेशर, इस जगह का प्रेशर दोनों का सेम है। तो मुझे बताओ इस बार कौन ज्यादा गैस, कौन जल्दी गैस डिफ्यूज करेगी, ए की बी? 3 मोल वाली क्या करेगी, 3 मोल वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, डिफ्यूजन तो कंसंट्रेशन डिफरेंस से होता है, और क्या होता है इफ्यूजन जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस से होता है। तो यहाँ पे मोल्स जितने ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा। तो अगर V और T कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो दिस मीन्स हम P1 के जगह क्या लिख सकते हैं, N1, और P2 के जगह क्या लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं।
सो दिस मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा, R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 अंडर रूट M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको डीपीपी जब दूंगा तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर काफी मिलेंगे, N1/N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, या फिर प्रेशर के उसमें P1। तो यहाँ पे आप वो फॉर्मूला भी ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या R1/R2 इज इक्वल टू, और लिख रहा हूं, N1/N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। What is N1 and N2? Moles of gas 1 and moles of gas 2. चलिए यहाँ, so now we will do some problem। देखते हैं कौन फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बहुत आसान फॉर्मूला, बहुत इजी है बेटा। मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, R1/R2 इज इक्वल टू, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो M2 अपॉन कितना लिखना है, M1 लिखना है, राइट। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व करके बताइए, देखते कौन बताता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ट्वाइस द अदर गैस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। देखते कौन करता है इसको। रेट ऑफ डिफ्यूजन, आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गिवन है, इट इज ट्वाइस ऑफ अदर गैस, सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। देखते कौन बताता है राइट आंसर। ओके, एक बच्चे ने आंसर 4 बोला है। ओके, रुत 4 ठीक है, मुस्कान का ही 4, 64 मुझे लगता है, राइट। 64 भी बोला हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कितना आता है। 64 एक और बच्चे का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 64 है बेटा, जिसका 64 है वो करेक्ट आंसर है। आप देखिए क्या, रेट ऑफ मीथेन इज 2 टाइम्स ऑफ गैस X मान लिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ गैस X, तो RCH4 अपॉन RX इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो R1/R2 कितना हो गया, 2, दैट इज M2 अपॉन M1। तो जब आप इसको स्क्वायर रूट को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 16 4 जा कितना आएगा, 64। तो जिसका 4 आंसर आ रहा था बेटा, उसको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। काफी बच्चे 4 आंसर कर रहे थे। somebody has given the 64, 2-3, 2-3 बच्चों ने 64 दिया था। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 64 नॉट 4। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आई विल रिपीट इट, कोई दिक्कत नहीं मुझे रिपीट करने में, बट ये क्लियर होना चाहिए सभी को। ओके ठीक है, राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके बताइए, देखते कौन बताता है इसका करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4O2 और SO2। देखते कौन बताता है इसका आंसर। प्लीज जल्दबाजी नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस बार तीन गैसेज हैं, CH4O2 और SO2। फटाफट फटाफट, नहीं रॉन्ग आंसर है ये। चलिए हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये मे भी शायद आपसे नहीं होगा, तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए क्या है। ठीक है, देखिए CH4, रेट ऑफ CH4 इज टू रेट ऑफ, नहीं, रेट ऑफ O2 इज टू रेट ऑफ SO2। आप ध्यान से देखिए क्या है प्लीज। हाँ सब लोग देखेंगे, डोंट राइट इट एनीथिंग, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं। ठीक है, देखेंगे तो ये रेट, इसका रेशियो निकालना है हमें, नहीं सबका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, सभी लोग देखेंगे, ठीक है प्लीज। तो रेट जो है, हमने बोला था रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होगा, तो मैं R इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट M लिख सकता हूँ। K इज एनी कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M, स्क्वायर रूट ऑफ M था तो K लिख दिया मैंने। तो देखिए R का इसका मतलब क्या हो गया, K टाइम्स अंडर रूट ऑफ मीथेन कितना हो गया, 16 मॉलिक्यूलर वेट, इज टू K टाइम्स अंडर रूट O2 कितना हो गया, 32, इस टू अंडर रूट कितना हो गया, K अपॉन कितना हो गया, 64। ठीक है, सो K से K कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कितना आ गया, 4, इस टू 1 अपॉन कितना आ गया, ये 16 इंटू 2 तो 4√2 आ गया, इस टू कितना आ गया, 8 8 जा 64, कितना हो गया, 8 8 जा 64। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये रेशो आया, बट ये रेशो, ठीक है, ये रेशो सही नहीं है,
क्योंकि ये खुद भी रेशो में है, ये 1/1 में है। तो जब कभी भी ऐसा है तो आपको रेशो में देना है, ना कि इनवर्स रेशो में देना है। तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस पूरी इक्वेशन को 8√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया, 8√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 8√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ठीक है, या आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 8। अरे ये रेशो नहीं होता है बेटा, रेशो क्या होता है, 2:3:4 ऐसे ये रेशो होता है। क्या ये रेशो माना जाएगा? ये रेशो नहीं है, ये तो 1/1 में है। रेशो क्या होता है, 3:2, 2:3। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 5th क्लास में पढ़ाया जाता है रेशो। रेशो इज नॉट 1/2, नॉट 3/4 ऐसा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये गिवन नहीं होगा आपको ऑप्शन में, और ऑप्शन में ऐसे गिवन होगा √2, √3 ऐसे, 2:4, 4:3 ऐसे गिवन होगा, ना कि ऐसे गिवन होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसका कोई आंसर बता पाएगा अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम? एनीवन? तो मैं क्या इसमें क्या करें हम? हाँ अभी सही है, अभय का आंसर सही है, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 हो गया। 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या बना, 2 अपॉन कितना बना, √2, और ये कितना हो गया 1। तो इसको क्या लिख दिया, √2 लिख दिया। तो √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिला, √2 कितना मिला, 1। तो आंसर क्या है, 2:√2:1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? क्लियर है सभी को? ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, k:16, k:32, k: कितना 64। तो k कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डोंट लीव द क्लास, है नोबडी विल लीव द क्लास। ठीक है, चलिए यहाँ, ठीक है, राइट। देखते कौन करेक्ट आंसर बताता है। x वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इफ्यूजेस थ्रू अ होल इन अ कंटेनर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में x क्या कर रहा है, x ml ऑफ H2 गैस इफ्यूज कर रही है। द टाइम टेकन फॉर अ फ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V1 वॉल्यूम वाला, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू √M2 अपॉन M1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो V1 और V2 तो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सो दिस मीन T2 अपॉन T1 कितना हो गया, √M2 अपॉन M1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इनसे मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखते कौन बताता है। तो यूज फॉर्मूला ये वाला, V1 अपॉन T1। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है अरुण, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नहीं, what is the correct answer? I am still waiting for the correct answer. Yeah, Muskan, Soumya has given the correct answer. The correct answer is B. The correct answer is B. देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, x ml ऑफ गैस था जो जो किसमें 5 सेकेंड में डिफ्यूज कर रहा था। हाइड्रोजन क्या कर रहा था, x ml हाइड्रोजन गैस 5 सेकेंड में डिफ्यूज कर रहा था। सेम वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज करना था इन 20 सेकेंड, तो x से x कैंसिल हो गया, और ये हो गया √M2 अपॉन M1। तो ये 20 अपॉन कितना हो गया 5, तो 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4 हो गया। तो जिसका रूट M2 अपॉन M1 कितना आएगा, 4 आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 4 देखिए किसका आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कितना करता हूँ देखिए, ठीक है, ये टाइम मैंने कितना पुट कर दिया, 20 पुट कर दिया, ठीक है ना, और O2 का कितना है 32, तो अंडर रूट कितना है 32 अपॉन कितना 2, तो 16 का रूट कितना हो गया 4। तो जब इसका टाइम आप 20 सेकेंड पुट करेंगे और मॉलिकुलर वेट कितना पुट करेंगे 32 पुट करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखा बी मैंने, x अपॉन 5 अपॉन x अपॉन टी, तो t अपॉन 5 इज इक्वल टू √M2 अपॉन 2। तो मैंने t को 20 पुट कर दिया, मैंने t को क्या कर दिया 20 पुट कर दिया, तो 20 अपॉन 5 और अपॉन M2 बी ऑप्शन पुट कर दिया √2, तो ये 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो करेक्ट आंसर कितना है, 4 है।
क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है? ठीक है, ये पहले को प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम ये क्वेश्चन, राइट? ठीक है, तो प्लीज हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है आज के टाइम में, ये काफी रेलेवेंट है। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बेटा, नोट्स तो आपको हर रोज मिल जाते हैं, कभी नोट्स नहीं मिलते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए देखता हूँ, ये क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन वर्बली है, इसमें कुछ पेन नहीं चलाना, देखते हैं कौन बताता है। टेल मी द करेक्ट आंसर क्या है। एक पाइप है, इधर एक वेसल है जिसमें अमोनिया है, और इधर एक HCl है। इधर वॉल्व X लगा रखा है, इधर वॉल्व Y लगा रखा है, और ये पॉइंट गिवन है A B A C। A बीच में है, B इधर है और C इधर है। अगर मैं X और Y वॉल्व खोलता हूं तो हमें पता है दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो NH4Cl बनेगा। तो NH4Cl व्हाइट कलर का फ्यूम्स होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, राइट? ठीक है, इनवर्टेड फनल में व्हाइट ऊपर आप लगाते थे, कॉटन लगाते थे, राइट? ठीक है, सो क्या है, एमोनिया, एमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो वो पूछ रहा है कि किस पोजीशन पे बनना की प्रोबेबिलिटी है, क्या वो ए पे बनेगा व्हाइट कलर के फ्यूम्स, की बी पे बनेंगे, कि सी पे बनेंगे, कि ए बी सी पे, तीनों पे सेम टाइम पे सेम साइमल्टेनियस बनेंगे। तो कहां पे बनेंगे? सी पे बनेंगे, वेरी गुड। क्यू पे सी, क्यू सी पे बनेंगे, वाई सी पे बनेंगे, वाई सी पे बनेंगे, क्योंकि HCl क्या है, हैवियर है। HCl क्या है, हैवियर है, और एमोनिया क्या है, हल्की है। एमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5। तो एमोनिया विल ट्रेवल फास्टर, तो एमोनिया क्या करेगा, ज्यादा तेज। तो जब तक एमोनिया यहाँ पहुंचेगा तब तक HCl यहीं तक पहुंच पाएगा, क्योंकि एमोनिया विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू HCl, बिकॉज एमोनिया इज लाइटर। सो प्रोबेबिलिटी बीच में तो बनने की है नहीं, बीच में तो तब बनता जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता। यहाँ भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस अगर यहाँ बनता तो HCl ट्रेवल्स द मोर डिस्टेंस, तो बनेगा कहाँ पे, सी पे, बिकॉज एमोनिया ट्रेवल द लार्ज डिस्टेंस, राइट? सो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है सभी को, राइट? एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, नोट्स में भेज दूंगा मैं। और इस क्वेश्चन को हम कल इसको कल क्लास में रिपीट कर लेंगे। आप मुझे याद दिला देना ये क्वेश्चन रिपीट करना अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ऑल्सो प्लीज याद रखेंगे, आज मैं आपको DPP नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है? DPP नंबर 1 बेस्ड ऑन गैस लॉस, क्या है, गैस लॉस, ठीक है ना? प्लीज ट्राई टू सॉल्व द DPP नंबर 1 एंड सेंड मी योर डाउट बाय फ्राइडे, सेंड मी योर डाउट बाय फ्राइडे, ठीक है ना? तो जो हम उसको सैटरडे को मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा, या हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आज का लेक्चर क्लियर है बेटा आप सभी को? टेल मी यस या नो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू।